नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राजधर्म। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सत्ता बदलने जा रही है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिल गई है और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को पिछली बार डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार रहे जो बाइडेन ने हरा दिया था। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। उस दौरान मोदी और ट्रंप की गहरी दोस्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो अब जब जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता संभालेंगे तो भारत के लिहाज से क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। भारत और कनाडा के खराब होते रिश्ते, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल गाजा संघर्ष आदि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका का स्टैंड बदलने की बात कही जा रही है। इसी तरह कारोबार के लिहाज से बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चीन की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं, उससे भारत को अपना कारोबार बढ़ाने में कितनी मदद मिल पाएगी, यह भी बड़ा सवाल रहेगा। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के जमाने में बहुत अच्छे रहे, इसमें भी गर्मजोशी देखी जा रही है। तो इन सही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया, क्या गर्मजोशी दिखाई गई है। Our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. I thank Mike Johnson. I think he's doing a terrific job. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady. Who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great... My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate. तो अमेरिका में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है। 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भी सत्ता में थे, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए थे। उसके बाद जो बाइडेन
बहुमत से आए और उन्होंने 4 साल सरकार चलाई। इस बार जो बाइडन दूसरी बार खड़े नहीं हुए चुनाव में, उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कमला हैरिस जो भारतीय मूल की थी उनको राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़ा किया, लेकिन वहां पर जो है वो बहुमत हासिल नहीं कर पाई हैं, बहुमत से थोड़ा सा पिछड़ गई हैं। कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट, यानी कि यहां कह सकते हैं भारत के लिहाज से सांसद, तो वैसे ही 224 सीटें मिली है और ट्रंप को 270, यानी बहुमत 270 का था, 7 सीटें ज्यादा मिल गई हैं। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अमेरिका की कमान एक बार फिर संभाल लेंगे और दुनिया पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां बहुत मुखर है, बहुत सारे मुद्दों पर वो अलग सोच रखते हैं। जो मौजूदा अमेरिकी सरकार है उससे बहुत सारी नीतियां उनकी अलग हैं और वो खुलकर कहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने लगातार कहा, और भारत के लिहाज से बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते उस दौर में बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारत में नमस्ते ट्रंप हुआ था, तो अमेरिका में जो है हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। अभी जो समस्याएं चल रही हैं, रूस यूक्रेन संकट है, तमाम मुद्दों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। भारत के लिहाज से कितना दमदार रहेगा उनका कार्यकाल, इन सब पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे। अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप चौधरी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर करोड़ी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। अमेरिका में 132 साल बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति बने हैं जो हारने के बाद फिर जीत गए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत चौंकाती भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से हालात हैं उसमें बहुत चीज़ों को वो आलोचना करते रहे हैं। रूस यूक्रेन संकट को उन्होंने दूर करने का वादा किया, मिडिल ईस्ट को जो है युद्ध से बचाने का वादा किया। ये एक बड़ा कारण रहा शायद उनकी जीत का, जिससे मुस्लिम जो वहाँ के मिशिगन वगैरह जैसे छात्र हैं वहाँ वो उनको वोट देने के लिए आगे आए। आमतौर पर क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है मुस्लिम राष्ट्रों पर कई प्रतिबंध लगा चुके हैं, ट्रैवल बैन तक जो। तो कैसे बदला, क्या रहा, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताइए जरा। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप बहुत दूसरी बार राष्ट्रपति बनने हारने के बाद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप की जीत के बारे में हम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मीडिया वाले हैं, इस तरह का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगा कि इस तरह से ट्रंप जीतेगा और जो स्विंग स्टेट हैं वहां भी जीत जाएगा। क्यों हुआ? देखिए, पूरी दुनिया में 2024 है वो चुनावी वर्ष है। दुनिया की आधे से ज्यादा जनता है वो चुनावी प्रक्रिया से गुजर रही है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, रशिया और बहुत से देश, यूरोपियन यूनियन। तो इतने लंबे क्षेत्र में जब मतदान हो रहा है तो 2024 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चुनाव में एक कॉमन इश्यू जो उभर कर सामने आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के लेके जिस तरह से राजनीतिक दल मुखर हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो उसका असर अमेरिका पे पड़ा। तो ट्रंप ने जो नारा दिया, सबसे महत्वपूर्ण नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। दूसरे देशों में भी यही नारा दिया गया कि हम अब हमारी जो पुरानी गरिमा है उसको रेस्टोर करेंगे, ग्लोरी को रेस्टोर करेंगे। तो जनता ने उसको समर्थन किया। तो राष्ट्रवाद का बहुत ज्यादा उभार है। ये अगर सकारात्मक तक रहे यहाँ तक तो ठीक है, अगर ये एक्सट्रीम में चला जाता है तो उसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद उभर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया उन्होंने इमिग्रेशन का, और जो माइग्रेशन वाला इश्यू है वो विकसित देशों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोप के कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ के जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जो जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सभी जगह है। तो जो माइग्रेंट्स हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट को छीन रहे हैं। ऐसी स्थिति कॉलोनियल पीरियड में भी आई थी, जब कॉलोनी से लोग कॉलोनाइजर्स के देशों में चले गए
तो 1930 के आसपास जब हिटलर का राज हुआ तो वहां भी ऐसी समस्या आई थी कि कॉलोनी से लोग आके आपके जॉब छीन रहे हैं। एक दूसरा इश्यू इसमें महत्वपूर्ण है, वो यह है कि अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं उनको माइग्रेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो वो अमेरिकन के लिए होने चाहिए। ये इश्यू भी ट्रंप ने रेज किया। इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि अमेरिकन समाज का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग हैं वो गरीब देशों से आ रहे हैं। और ट्रंप का कहना था कि वो मैक्सिको के रूट से, जिसको डंकी रूट कहते हैं, वहां से आ रहे हैं और आके अमेरिका में अपराध की प्रवृत्ति जो माइग्रेंट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। और विशेष रूप से ये टारगेट था अफ्रीका एशिया के जो माइग्रेंट्स हैं। और उसके लिए ऑलरेडी अमेरिका ने जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इन सब चीजों का कुमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवाद की हवा चल गई। और दूसरी तरफ कमला हैरिस थी, वो लोक कल्याण की बात कर रही थी, लेबर वेलफेयर की बात कर रही थी। तो ट्रंप ने ये कहा कि मैं टैक्स कट करूंगा, सुविधाएं उससे ज्यादा अच्छी दूंगा, तो जनता उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ट्रंप पे जब ये आरोप लगा कि ये फांसीवाद की तरफ ले जाएंगे अमेरिका को, प्रजातंत्र को खत्म करेंगे, तो उस ट्रंप के जो दो चीजें फेवर में आ रही थी, एक तो प्राउड बॉयज जिन्होंने कैपिटल हिल पे ट्रंप के लास्ट टाइम में जब हार गए थे तो कैपिटल हिल पे जो अटैक किया था, उन प्राउड बॉयज से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा। जो वाइट यंग लोगों का ग्रुप है तो उसको इलेक्शन में ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। एक अन्य चीज है, जो हेरिटेज फाउंडेशन है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, एजेंडा 2025, और वो ट्रंप का एजेंडा होगा, उस पे काम करेंगे। लेकिन ट्रंप ने मना किया कि मैं उस पे पूर्णतः काम नहीं करूंगा, लेकिन वो उनका एजेंडा होगा। इस सबसे जो ट्रंप का इंपैक्ट हुआ, आज अमेरिका का समाज है पूर्णतः विभाजित है, ध्रुवीकृत है। बुद्धिजीवी भी ध्रुवीकृत हैं, एनजीओ भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, और दूसरे जो क्षेत्र कॉर्पोरेट है वो भी ध्रुवीकृत है। एक तरफ एलोन मस्क हैं, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग $बिलियन के, कुछ कहते हैं 75 मिलियन दिए हैं, कुछ कहते हैं $1 बिलियन के करीब पैसा खर्च किया है उसने ट्रंप के समर्थन में। एक जो रॉबर्ट कैनेडी हैं, जो कि सामान्यतः डेमोक्रेटिक वोट्स लेते थे, वो ट्रंप के समर्थन में बैठ गए। तो उसका इंपैक्ट मेरे ख्याल से ये हुआ कि 7-8% के करीब वोट वो ले सकता था, वो ट्रंप की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं, उसका ट्रंप को फायदा मिल गया। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप जो आगे सरकार चलाएगा तो उसमें निश्चित रूप से एलोन मस्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसके अलावा भी ट्रंप जिस तरह की नई सरकार बनाएगा उसमें जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनमें कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ थे, जैसे मीडिया हाउसेज हैं, फॉक्स न्यूज है वो ट्रंप के साथ है, CNN है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है। तो अमेरिकन समाज है वो इतना ध्रुवीकृत है कि अमेरिका में भी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आएगी। जो प्लस पॉइंट हो सकता है दुनिया के लिए वो ये हो सकता है कि ट्रंप जिस तरह की राजनीति करता है वो बिजनेस पॉलिटिक्स करता है। तो जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में जगह जगह हो रहे हैं, जो ट्रंप ने अपने कैंपेन में भी कहा कि मैं जीत गया तो इमीडिएटली युद्ध समाप्त कर दूंगा, तो ट्रंप ये प्रयास करेगा कि अमेरिका की भूमिका ये हो कि जो सैनिक तनाव चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उनको समाप्त किया जाए, लेकिन दूसरी चीजों को वो बढ़ावा देगा। जो व्यापारिक तनाव है या संघर्ष है वो बहुत ज्यादा शार्प कर देगा, क्योंकि जिस तरह का उनका ओरिएंटेशन है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है निकलेगा, एक तरफ अमेरिकन प्रशासन है, नीति निर्माण की एक प्रक्रिया है, फीडबैक होता है, डीप स्टेट है, और दूसरी तरफ ट्रंप की जो प्रकृति है
कि तत्काल निर्णय लेना, त्वरित गति से इंप्लीमेंट करना, वो प्रशासन तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए। तो विद इन सरकार है, गवर्नेंस प्रोसेस में भी एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसकी एक बात तरफ करते हैं जो अभी। इनपुट देखिए, देने एक-एक वाले हैं मुद्दे पे- पेंटागन और ट्रंप के बीच में भी कुछ जी। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बिल्कुल समझेंगे, एक मुद्दे को बहुत समझाया आपने जो है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो अभी बताया डॉक्टर साहब ने जो है, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट को लेकर जो उन्होंने बात की थी, ट्रंप ने जो वादा किया था चुनाव में, उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने का वादा किया था, और इजराइल को जो सपोर्ट जो बाइडेन सरकार लगातार दे रही थी उसमें कमी के संकेत दिए थे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। जो अफ्रीकी अरब मुस्लिम्स वहां से जो यूएस के वोटर हैं, मिशिगन जैसे राज्य वहां पर जहां करीब 55% जो है मुस्लिम वोटर्स भी हैं, वो आमतौर पर जो है वोट ट्रंप को नहीं देते रहे। लेकिन इस बार जो खबरें आई कि उनको बड़े पैमाने पर वोट मिला है, यानी शांति के पक्ष में, कि पूरी दुनिया में वो शांति फैलाएंगे, कारोबार करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन युद्ध से रोकेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है दुनिया में कि युद्ध से रोका जाए। सबसे तो पहले मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि मैं फॉरेन डिप्लोमेट रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो चैनल है वो देश में सुना जा रहा है, विदेशों में भी सुना जा रहा है? नहीं, हमारा चैनल जो है बहुत से उसमें आता है, विदेशों में सुना जाता है, सुना जाता है जी। तो कुछ भी हो, पहले वो प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, और अब फिर दोबारा प्रेसिडेंट चुन लिए गए, डेजिग्नेट हो गए हैं इस वक्त। तो उनके लिए जो भी शब्द हम इस्तेमाल करें वो एक सभ्य तरीके से करें, हाँ, बिल्कुल, डिप्लोमेटिक तरीके से करें। ये मेरी एक अनुरोध है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूं किसी को, लेकिन हम लोग एक्सीलेंसी वो हो चुके, पहले भी थे एक्सीलेंसी, बिल्कुल। और वो हमारे नौकर नहीं है और ना हमारे सबऑर्डिनेट है जिन्हें हम एड्रेस इस तरह करें। नंबर 1, ठीक है। शायद इस बात से सभी लोग एग्री हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए करें या दूसरे के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या होता है कि पॉलिसी सबका नहीं है। अपना अपना जो है बात करने का तरीका होता है, उसमें हम लोग नहीं, आपको दखल नहीं रोकना दे सकते। चाहिए जो शब्द है वो तरीके से, नहीं तो मुझे आप विड्रॉ कर लीजिए, मैं आपके पार्ट नहीं बनना चाहूंगा, सॉरी फॉर दैट। जहां तक आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि ट्रंप साहब का सवाल है, तो ट्रंप साहब जो जीत के आए हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जीत के आए, जनता ने उनको चुना है। अभी आप जो बात कर रहे थे कि उनके मुस्लिम्स ने भी वोट दिया है, गल्फ कंट्रीज के लोगों ने वोट दिया है, वहां फिलिस्तीन के लोग रहते हैं उन्होंने भी वोट दिया है, और जिस तरह की उनकी कार्यशैली थी पहले, हो सकती है कि किसी को ना पसंद आई हो, जिसकी वजह से कुछ वोट उनको कम मिले थे और पिछली बार वो हार गए, ठीक है, बाइडेन साहब से। जी, जी। लेकिन एक चीज मुझे जानना चाहिए, पूरी दुनिया जान रही है इस बात को, समझ भी रही है कि मिस्टर बाइडेन ने जिस तरह राज किया 10 साल, और उससे पहले 5 साल उपराष्ट्रपति के तौर पे, तो बिल्कुल कीप मम रहे, जो हो रहा था वो होने दे रहे थे, और अनुदान के तौर पे, चाहे वो रशियन वार में जो दे रहे थे यूक्रेन को, वो एक दान के रूप में दे रहे थे, और ला कहां से रहे थे? बाइडेन साहब अपने घर से तो नहीं ला रहे थे ना, वो सारा पैसा अमेरिकन का था। इसी तरीके से जो उन्होंने इजराइल को दिया है एड, वो भी सारा पैसा जो है अमेरिका का है, और अमेरिका के लोगों का, सिटीजन का। ये अच्छी तरह समझ चुके हैं अमेरिकन, और अमेरिकन ने देखा कि उन पे टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और ये जो सरकार है ये कुछ करने में सक्षम नहीं है। इससे पहले तो अच्छे थे जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने किया राज, जो भी किया एज ए डिक्टेटर, एज ए ऑर्डर, जो भी किया उन्होंने, और रूल बनाए या जो भी किया, एक अच्छे तरीके से किया और ढंग से किया। लेकिन एक कमी थी उनकी जो उन्होंने अपनी पूरी कर दी। अब की बार वो डिलीवरी बॉय भी बन गए और वो एक ड्राइवर भी बन गए कूड़ा गाड़ी के। ये क्या शो करता है? ये इनका सिंबल ये शो कर रहा था कि हमने जो है पहले जो गलतियां की, व्हाइट कॉलर की, मैं रईसी की, अब मैं गरीब आदमी के साथ भी हूं, जनता के साथ भी हूं। एक्चुअल में समझ गए कि वोट देने वाला कौन है उनको, जनता ही वोटर है, और जनता ही उनको बादशाह बनाएगी और बादशाह से उतारेगी। तो इसलिए अब उन्होंने बात कहा कि यूक्रेन वॉर को हम खत्म कर देंगे 24 घंटे में, ये एक जुमला होता है। लेकिन हम जानते हैं, इसके पीछे जानते हैं, हम भी डिप्लोमेट रहे हैं, इस बात को हम जानना चाहें, दुनिया भी जानती है कि रशिया से उनके बड़े अच्छे संबंध रहे। ही इज ए बिजनेसमैन, जिसके ऊपर इनके ऊपर केसेस भी चले अमेरिका के अंदर कि पिछले चुनाव में उनको रशिया ने सपोर्ट किया था। अब रीजन क्या है वार को खत्म करने का? कि जो सप्लाई चल रही थी
लड़ाई की, सामान की, इसकी उसकी, और नाटो के नाजे अध्यक्ष के नाते भी अमेरिका की तरफ से वो सप्लाई को स्टॉप कर देंगे। बिल्कुल। जब आप सप्लाई स्टॉप कर देंगे तो लड़ाई किससे लड़ेगा यूक्रेन? नंबर एक। नंबर दो, उधर रशिया को वो डिप्लोमेटिकली कहेंगे फोन पे, ऐसे नहीं करेंगे कि भाई आप भी आप वार बंद कर दीजिए। तो ये तो हुआ बात जिससे कि अमेरिकन को फायदा होने वाला है। उधर भी आप देखिए कि इजराइल में भी जो वॉर हो रही है, और वो ऐसे नहीं हो रही, 6-7 फ्रंट पे गल्फ में हो रही है। हाँ, ये ट्रम्प और हमारे मोदी साहब दोनों ही दुनिया से आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, जो उन्होंने G20 में किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और उसको सभी दुनिया मानती है, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे वो कोई भी मीटिंग ले लीजिए, G20 हो, हर तरीके से कहीं भी चले जाइए, हर जगह ये बात उठती है और हर जगह इस बात को कहा जाता है। अगर दुनिया में शांति होगी तो डेवलपमेंट होगा, ये हमारा देश भी चाहता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं, और G20 के देश क्या, G21 के दो चुक चुके हैं, ब्रिक्स के लोग भी हैं, सब कुछ है, तो शांति चाहते हैं। जहां तक सवाल है, इसमें एक ही बात आएगी कि रशिया भी आएगा प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमारा देश अपना सन 62 का है ना 65 का है। अब ये मोदी का देश है, मोदी का रिजीम है, और मोदी की फॉरेन पॉलिसी है। पहले हम ईस्ट और वेस्ट देखा करते थे, यानी हम वेस्ट की तरफ देखते थे, कभी लुक ईस्ट करते रहते थे, लेकिन आज क्या है, हम पूरी दुनिया को एक निगाह से देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया को एक निगाह से देखते हैं, जो चाहते हैं उस तरह से बातें मनवाते हैं। 1-to-1 डायलॉग होता है, मल्टी लेवल डायलॉग होता है। अभी आपने रिसेंटली उनकी जो विजिट देखी, रशिया गए थे, वहां चाइना भी था, चाइना से भी मिले, रशिया से भी मिले, और इस तरह बातें पूरी उन्होंने अपनी बातें रखी, और चाइना को पीछे हटना पड़ा। चाइना अब समझ चुका है कि आगे इस देश से पंगा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हर तरीके से हमारा भारत, चाहे सैन्य शक्ति से हो, चाहे आर्थिक स्थिति से हो, हर तरह से मजबूत है, और फ्रंट पे लड़ाई अच्छी लड़ेगा और हमको मात दे देगा। इसलिए वो पड़ोसी के नाते थोड़ा झुकाव आया है इसके अंदर। उसने ये भी देखा है कि ये अमेरिका से भी नहीं दबे हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रशिया से जो लेना था दोस्ती के नाते लिया, ईरान को भी दोस्ती के नाते रखा साथ में लूप में। ये नहीं किया कि उनसे रिश्ते कट कर लिए, भले उन्होंने सैंक्शन लगाई, लेकिन इंडिया ने किसी की सैंक्शन नहीं मानी, उन्होंने अपने रिश्ते रखे मजबूती के साथ में। और आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हमारा भारत महान है, हमारे देश के नेता महान है, प्राइम मिनिस्टर महान है। बिल्कुल, तो भारत के लिए बहुत इस अच्छी बात शक्ति के साथ काम करते हैं, वही आज ट्रंप भी करेंगे। तो एक अच्छी बात है कि ट्रंप उनके दोस्त भी हैं, अफेक्शन भी है। उसी जगह अभी आप बात कर रहे थे स्टार्टिंग नोट में कि कमला हैरिस हमारी भारतीय मूल की है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार हिंदुस्तान में हर एंकर, हर लोग ये कहते हैं कि कमला हैरिस भारत मूल की है। क्या मुझे आप इस बात का जवाब देंगे कि भारत मूल के नाते 4 साल वो उपराष्ट्रपति रही, कभी इंडिया की तरफ आई? देखा उन्होंने? ऋषि सुनक का नाम लूंगा, जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और इंडिया में आए, विद फैमिली आए, और हमारे मंदिरों में भी गए, आस्था में गए, और दोस्ती भी रखी, और हर जगह आए। लेकिन कमला हैरिस नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन है, मैरिज भी उन्होंने जूस से की है, वो हमारी भारतीय नहीं रही। आप इन बातों को मत कहा करिए। क्यों? नहीं, लेकिन जानकारी देखिए, आई थी कश्मीर, सुनिए एक मिनट, होल्ड ऑन। जब कश्मीर आई थी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपोजिशन लीडर, तो उन्होंने आके यहाँ पे उनको एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि इरादे जान लिए थे हमारी गवर्नमेंट ने। विदेश मंत्रालय भी ये होता है, इसमें हमारा होम मिनिस्ट्री भी होती है और डिफेंस मिनिस्ट्री भी हो। उन्होंने देख लिया कश्मीर में जाके ये उल्टी बातें करेंगी, उनको नहीं जाने दिया गया, जिसका उनको मलाल था। मेरा ये कहने का मकसद है कि जो सच्चाई है वो सामने रहती है। यानी आज अगर ट्रंप चुना गया, मैंने जो भी स्टेटमेंट है आप हर चैनल पे देख लीजिए, मैंने कहा था ट्रंप विल बी द विनर कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तब वही हुआ। आप देख लीजिए किसी भी चैनल का, आपका आकलन जो है बहुत सटीक रहा है। पहले हम लोगों ने बात की और बहुत अच्छा आकलन आपने पेश किया है, लेकिन कोई क्या बोलेगा देखिए, ये उसका व्यक्तिगत मत होता है, ये हमारा मत हो सकता है कि वो ये ना बोले। सबके अपने अपनी जो है वो बोलने का अधिकार है। नहीं, जो नाम लेने का तरीका है वो अगर फॉरेन पर बात हो रही है उसी अंदाज से। ठीक है, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संदीप चौधरी साहब, भारत की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। अभी जो है क्वाड सम्मेलन अगले साल भारत में होने वाला है। अभी खबर आई है कि ट्रंप के प्रवक्ता ने कह दिया कि ट्रंप साहब जो है अगले साल जो क्वाड सम्मेलन होगा उसमें भारत आएंगे, यानी एक तरह से काम शुरू भी कर दिया है पहले दिन से। तो भारत और मोदी जी और उनके संबंध, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये बहुत मशहूर हुआ था और हैरानी हुई थी, वो चुनाव हारे थे। इस लिहाज से आप भारत को कितना आगे बढ़ते देखते हैं?
क्योंकि जब ट्रंप जो है उनकी नीतियां चीन के खिलाफ हैं और मुखर विरोधी है चीन के, उसे कारोबार पर रोक लगाना चाहते हैं, तो भारत के लिए अच्छा अवसर देखते हैं आप जो है अगले 4 साल? भारत के लिए चीजें ठीक होंगी, ऐसी ही मैं उम्मीद कि डॉक्टर आवाज नहीं आ रही है। आवाज कुछ आपका माइक, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? म्यूट होगा। आपका माइक थोड़ा सा हल्का है, म्यूट तो नहीं है, आवाज आ रही है, हल्की आ रही है। अभी आ रही है हाँ क्या अब आ आवाज? रही है, बिल्कुल बोलिए। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इंडिया में एक मजबूत सरकार है और मोदी जी को काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है, जैसे अमीन साहब ने कहा, हम अगर कोई डिबेट करते हैं और दुनिया के लीडरशिप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमारे देश से, हमारे चैनल से कुछ सभ्यता की बात जानी चाहिए। हमें किसी का रफ्ता बिल्कुल वो बात मान ली गई, आगे बढ़िए आप, वो बात मान ली गई, ठीक। और जिस तरीके से ट्रम्प साहब ये चुनाव जीते, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिकन पार्टी को और ट्रम्प साहब को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से। और रही बात, इस बार मुझे लगता है हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी रही या जो मोदी जी को एडवाइस करते हैं वो ज्यादा अच्छी रही। पिछली बार के चुनाव में मोदी जी ने कह दिया था अब की बार ट्रम्प सरकार, वो ऐसा तीर था, अगर ट्रम्प की सरकार बन जाती तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाता पूरी दुनिया में, और ट्रम्प साहब के पास सीधा ये मैसेज जाता कि जैसे अमेरिका का जो चुनाव था वो हिंदुस्तान ने जिता दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चुनाव ट्रम्प साहब हार गए थे, और इस बार ऐसा कोई कुछ हमारे देश की तरफ से या लीडरशिप की तरफ से नहीं कहा गया कि अब की बार ट्रम्प सरकार और कमला हैरिस चुनाव हार गई है और ट्रम्प साहब चुनाव जीत गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छे से काम करती है, देखिए ऐसा नहीं है कोई अगर हंस के किसी के साथ खाना खा ले या कोई गलबैया कर ले, गले में हाथ डाल ले तो वो दोस्ती हो गई है। जो चीज कैमरे पे दिखाई जाती है, अगर दुनिया की टॉप लीडरशिप खड़ी है और भूटान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके सेंटर में खड़े होकर एक फोटो खिंचा ले और वहां की मीडिया दिखाई के देखिए सबको ये लीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जनता बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है। हमें पता है भाई सुपर पावर अमेरिका ही है, चाहे वो साइड में खड़ा हो जाए चाहे वो बीच में खड़ा हो जाए। हमें पता है रसिया एक पावर है, वो चाहे बीच में खड़ा हो जाए, राष्ट्रपति चाहे साइड में खड़ा हो जाए। तो इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा, हमारी मीडिया को भी समझना चाहिए, जनता को पागल नहीं बनाना चाहिए, चीजें बिल्कुल स्टेप फॉरवर्ड होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए हम किस जगह खड़े हैं, हिंदुस्तान हमारा कितना मजबूत है, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर यहाँ बात करें हम चाइना को 1 मिनट में मिटा देंगे, तो देखिए पढ़ा लिखा समाज हंसता है इन चीजों पे बैठ करके। हाँ, हमें तरक्की की जरूरत है, और तरक्की जब होगी जब हमारा देश मिल करके चलेगा, जब यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होगी, यहाँ सिखों को आतंकवादी कहना बंद किया जाएगा। हमें एक सूत्र में आना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया हमें हिंदुस्तानी के नाम से पहचाने। तो मैं मानता हूं कि पहली ये पहल होगी तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, लेकिन ऐसे हम तरक्की नहीं कर सकते कि हम रसिया से हाथ मिला ले तो हिंदुस्तान आगे बढ़ गया, हम अमेरिका से हाथ मिला ले तो हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और हमारा देश कट कट के मरता रहे, हम वोट नफरत के नाम पे मांगते रहे और सरकारें बनाते रहे। ठीक है, ठीक है। अश्विनी साई साहब का बताना चाहूंगा, बीजेपी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती जो है ट्रम्प साहब से जग जाहिर है और मोदी साहब ने जो है उनको बधाई भी दी है और वहां से भी फौरन संदेश आया कि अगले साल भारत आ रहे हैं, तो इस लिहाज से क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं भविष्य में? देखिए नवीन जी, ट्रम्प का जीतना, ट्रम्प जी की जीत हुई है, बहुत ही ग्रेटेस्ट कमबैक है, इसको माना जाएगा हिंदुस्तान के हिसाब से। कमला हैरिस के बारे में अभी डॉक्टर साहब कुछ बता रहे थे। कमला हैरिस को भारतवंशी ही कहा जाता है, लेकिन भारत के लिए उनको देखा जाता है कि भारत के विरोध में काम करती है, और ट्रम्प जी का पहला कार्यकाल भारत के हिंदुस्तान के पक्ष में रहा, और वहां के 52 लाख जो भारतवंशी हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहां, और खास करके हिंदू समुदाय 52 लाख वहां पे हैं, इनके चुनने में बहुत अहम योगदान रहा है, और वो चीजें दिख रही हैं। कमला हैरिस जी का मैं एक ज्यादा की बात नहीं है, बाकी तो सब भी जानकार यहाँ बैठे हैं। तेजस के इंजन का हिंदुस्तान ने जो है पूरा पेमेंट कर रखा है, लेकिन तेजस का इंजन उन्होंने रोक रखा है, अभी नहीं मिला हिंदुस्तान को। तो ये उनकी चीजें थी, और अभी ट्रम्प के आने से कम हिंदुस्तान में एक बात और हुई है कि हिंदुस्तान में जो लेफ्ट लिबरल गिरोह का इकोसिस्टम था वो हिल गया है। अब कितना, अब इससे सोच लीजिए कि हिंदुस्तान को क्या लाभ होगा, ये देखने वाली बात है नवीन जी। जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं सबके शांति हो गई है, एकदम सन्नाटा छा गया है, एकदम खलबली मच गई है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। जो लोग मोदी जी के और ट्रम्प के संबंधों को मजाक उड़ाया करते थे
अभी चुनाव में देखिए किस तरीके से भगवा में उनके मीम बन रहे थे, तो वो साबित कर दिया जनता ने। हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं। हम भी युद्ध रोकने की बात करते हैं, शांति और बुद्ध की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ये कहता है, हालांकि पिछली सरकार में कुछ कड़े रुख भी रहे ट्रंप जी के भारत के लिए, टैरिफ को लेकर रहे, कई कड़े, जो हेरला डिवीजन वाला मामला आया, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी कि जो उनको अमेरिका फर्स्ट की बात वो करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात वो भी करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात हम भी करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर सर्वाधिक ये देखा जाएगा कि हिंदुस्तान के हित की बातें होंगी, हिंदुस्तान का जो फायदा होगा। चूंकि आज नवीन भाई समझने वाली बात है, ये हिंदुस्तान के लिए ये फायदेमंद है या नहीं है। हिंदुस्तान ने अपने आप को उतना ऊंचा उठाया है, उतना मजबूत किया है कि इनकी मजबूरी है कि आज हिंदुस्तान के साथ इनको चलना है। दूसरी लाइन, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, अमेरिका ने बैन लगा दिया था और वहां का ऑयल खरीदकर हिंदुस्तान में रिफाइनरी के द्वारा दूसरे यूरोप के देशों में गया, उन्हीं नाटो देशों में गया जहां पर वो रसिया पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, और किसी देश ने मना नहीं किया तेल लेने से। रसिया का ही तेल था, पूरा विश्व जान रहा था। तो ये हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत भी है कि जो ये लोग हिंदुस्तान के लिए खड़े रहेंगे, अपने देश का उनके लिए है ही है, लेकिन ट्रंप के आने से मोदी जी का जो एक कॉम्बिनेशन था उनका, वो और बेहतर तरीके से हिंदुस्तान के कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। अगले 4 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छे होंगे। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फुक अपना ना देखिए दिवाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। किन्ने जीव जंतुआं दी मिट्टी विच थारे, रुखा पौधिआं ते उत्ते नचदी बहारे, बचे रहन कुग्गियां दे बच्चे साने टाली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। वेख धुएं नाल हाल हुंदा कि चुफेरदा, सिखर दुपहर दी से मंजर हनेरदा, सारी कायनात जापे होई काली काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। मंडी विच पिया सारा झोना विक लैण दे, धरती दा थोड़ा जिहा सां टिक लैण दे, अगली फसल लई एडी कादी काली, साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली, हो साड़ी ना पराली वीरा साड़ी ना पराली। गुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਓ। ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀਰਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਪਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਾਓ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ 80% ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। ब्रेक के बाद राजधर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत हुई है और उनके लिहाज से भारत और अमेरिका के संबंध आगे कैसे काम करेंगे, भारत को क्या फायदा होगा, और मोदी सरकार और डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं, उसके लिहाज से और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब है, विदेशी मामलों के जानकार, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है, विदेशी मामलों के जानकार, और संदीप चौधरी साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, एक बार फिर आपका कहना चाहूंगा, हमने बात की भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ एक नुकसान भी है, क्योंकि आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत कड़े बिजनेसमैन हैं और सारे फैसले बिजनेस के लिहाज से लेते हैं। तो महंगाई है इस समय बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, टैक्स इमिग्रेशन का बहुत बड़ा मामला है। तो ये सब मुद्दे जो है भारत को सीधे प्रभावित करते हैं। H1B का वीजा जो वाला मामला है
भारत के जो कारोबार, जो जॉब के लिए जाते हैं वहां पर, उन सब पे असर पड़ेगा? रोकेंगे वो? कहीं ना कहीं यहां बात बिगड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा जो बुनियादी मामला होता है वो देश का हित होता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत का हित पूरा करना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का हित पूरा करना चाहेंगे। लेकिन अगर दो नेताओं में दोस्ती होती है, अच्छी केमिस्ट्री होती है, अच्छे रिश्ते होते हैं, तो अगर कोई हितों में टकराहट होती है तो उसको आसानी से रिजोल्व किया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में भारत के साथ अच्छी तरह से, देखिए, ट्रेड को लेके डिस्प्यूट होगा, ट्रेड इम्बैलेंस भी है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान ये कहा भी है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत के जो आयात हो रहा है उस पे मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि भारत अमेरिका से निर्यात होने वाले पे वहां टैरिफ लगाता है। तो चुनाव के दौरान ही ट्रंप साहब ये बात कह चुके हैं। जहां तक आपने वीजा की बात बताई, देखिए, भारतीय वहां जाते हैं अमेरिका में, ज्यादातर स्किल्ड लेबर जाता है, अनस्किल्ड नहीं जाता है। अनस्किल्ड बहुत कम जाता है। भारत का अनस्किल्ड लेबर अरब कंट्रीज में जाता है, दूसरे देशों में जाता है। तो जो ऑलरेडी स्किल्ड जाते हैं वो अमेरिका के विकास में योगदान करते हैं, अमेरिका के लिए बर्डन नहीं है। तो ट्रंप ने जो इमिग्रेशन माइग्रेशन वाला इश्यू उठाया है कि बाहर के लोग आके, यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि बाहर के अपराधी भी यहाँ अमेरिका में आ रहे हैं और अपराधीकरण कर रहे हैं अमेरिकन समाज का। तो वो जो बात कर रहे हैं वो इलीगल इमिग्रेंट, जो डंकी रूट, जो हम वर्ड यूज करते हैं, उससे आते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या माइग्रेंट्स हैं वो बहुत कम हैं भारत के। तो भारत के जो वीजा का सवाल है वो निश्चित रूप से रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भारत के जो स्किल लेबर है या जो एक्सपर्ट हैं वो चाहिए अमेरिका के विकास के लिए। तो वहां भारत और अमेरिका के हित का कन्वर्जेंस होता है, टकराहट नहीं है। और जहां हित दोनों के मिलते हैं तो वहां विन विन सिचुएशन होती है, टकराहट नहीं होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की नीति है और अमेरिका की नीति है वो आतंकवाद को लेकर है। लेकिन आतंकवाद में सबसे बड़ी समस्या आती है कि विश्व का कोई सर्वमान्य दृष्टिकोण नहीं है। भारत ने 1996 में यूएन जनरल असेंबली में एक कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म का प्रस्ताव रखा, वो आज तक पास नहीं हुआ। तो आतंकवाद क्या है ये कैसे तय हो? अमेरिका और भारत दोनों नहीं, दुनिया के सब देश मिलके ये तय कर लें कि ये आतंकवाद है, तब उससे आसानी से डील किया जा सकता है। आज की स्थिति में कुछ देश दूसरे देश में आतंकवाद को समर्थन करते हैं अलग अलग बहानेबाजी के साथ। तो उस स्थिति में आतंकवाद को लेके ये डिफरेंसेस हैं, इनको कैसे रिजोल्व किया जाए ये चिंता की बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण एक जैसा हो सकता है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तीसरा, जो भारत और अमेरिका का एक कॉमन दृष्टिकोण है, देखिए, अमेरिका के लिए रशिया और चीन चुनौतियां, अमेरिकन प्रशासन का प्रारंभ से ही ये दृष्टिकोण है कि रशिया और चीन है वो राइवल स्टेट्स हैं अमेरिका के लिए। तो उसमें भारत के सहयोग की जरूरत है। भारत को इग्नोर अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका की ये नीति है, 2022 में जो डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस से इश्यू हुआ था, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के राइज को अमेरिका सपोर्ट करेगा और भारत को रीजनल लीडर के रूप में प्रमोट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। तो अमेरिका के हित में यह कि भारत के नेतृत्व को वो समर्थन करे, लेकिन समस्या है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व को वैश्विक स्तर पे चुनौती न बने। भारत अगर अमेरिका का एक जूनियर पार्टनर के रूप में या क्षेत्रीय लीडर के रूप में एमर्ज होता है, अमेरिका भारत के साथ रहेगा और अमेरिका का जो वैश्विक दृष्टिकोण है उसमें भारत एक बहुत अच्छा सहयोगी एमर्ज हो सकता है। एक अन्य है जो भारत का बहुत बड़ा मार्केट है जो अमेरिका को चाहिए।
देखिए 1970 के दशक में निक्सन और किसिंजर ने चाइना का समर्थन किया था, तो अभी जब चाइना की आलोचना अमेरिका में होने लगी तो हेनरी किसिंजर ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय के संदर्भ में चाइना का सपोर्ट करना रणनीतिक दृष्टि के लिए हमारे लिए उपयोगी था और चाइना के मार्केट को यूज करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे लिए उपयोगी था उस जमाने में। तो आज वही स्थिति भारत की है। अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टि से और आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत बहुत उपयोगी है। इसलिए अगर कोई भी प्रेसिडेंट होता तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते का प्रयास करता, लेकिन आज स्थिति है कि ट्रंप साहब और भारत के प्रधानमंत्री के अच्छे रिश्ते हैं, तो वो चीजें आसान हो जाएगी, नेगोशिएशन आसान हो जाएगा, रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी, ये हो सकता है। और मुझे लगता है वही संभावना है। बाकी जो बुनियादी हित है वो कोई भी देश अपने बुनियादी हित को सैक्रिफाइस नहीं करेगा। जैसे भारत का बुनियादी दृष्टिकोण है कि भारत एक अपनी सामरिक स्वायत्तता रखेगा और ये लंबे समय से भारत की नीति चली आ रही है। तो भारत का दृष्टिकोण है वो अलाई किसी का भी हो सकता है, अलाइन किसी से नहीं होगा। तो भारत किसी भी देश के सैन्य अलाइनमेंट हैं उनमें सम्मिलित नहीं होगा। भारत सहयोगी हो सकता है, अमेरिका का भी, रशिया का भी, यूरोपियन कंट्रीज का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी, लेकिन अलाइन किसी से नहीं होगा। और जब क्वेड बना तो इसीलिए अमेरिका को यह एहसास हुआ कि भारत किसी भी सैन्य संगठन में सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए ओकस बनाया उन्होंने, 5 आइज बनाई, तो वो अलग संगठन बनाए। ओकस में तो भारत को अलग करने का ही दृष्टिकोण था। भारत का दृष्टिकोण यह है कि जो संगठन बने वो विश्व की प्रगति के लिए, विकास के लिए और शांति के लिए काम करने चाहिए। सैन्य गठबंधन से उससे अशांति का बढ़ावा मिलेगा। तो भारत का भी जो बुनियादी हित है और दृष्टिकोण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अमेरिका के बुनियादी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई डिफरेंसेस होंगे उनको आसानी से रिजोल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों के नेताओं के दृष्टिकोण में कुछ समानता है। जी डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जब 2-3 समस्याएं भारत के सामने पिछले कुछ समय से आई हैं, कनाडा की सरकार जो है जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, ट्रूडो सरकार वहाँ की, और बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब भी रहे हैं, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश में जो हुआ उसमें भारत कुछ कर नहीं पाया, उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ और इसमें जो बाइडेन सरकार का बड़ा रोल था। ये 2 बड़े मुद्दे आपको लगता है सुलझ जाएंगे और किस तरह हालात सुधरेंगे? क्या शेख हसीना की वापसी हो पाएगी? क्या ट्रूडो अपना जो है रवैया नरम करेंगे खालिस्तानियों को लेके, जो है जो उनका बहुत ज़्यादा नरम रवैया है उसमें थोड़ा सा सख्ती बरतेंगे? ऐसा कुछ होने की उम्मीद है? देखिए, जहां तक सवाल आपने कहा है कि बांग्लादेश का मामला है, तो बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे कंट्री में है। ऐसा नहीं कि भारत ने नहीं किया, भारत ने जो पड़ोसी देश के नाते किया था, पहले भी उनका देश बना था शेख साहब के टाइम में, उनके फादर के टाइम में, और अभी भी जब उनके पास इमरजेंसी आई तो उनको किसी दुनिया में, इवन गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम देशों ने भी उनका साथ नहीं दिया। साथ किसने दिया? यूरोपियन ने भी नहीं दिया, इवन इंग्लैंड से मांगा था उन्होंने जाने के लिए, लेकिन किसने साथ दिया? वो पड़ोसी देश था और मोदी जी हमारे थे, उन्होंने उनका वेलकम किया और वो अभी भी यहाँ रह रही हैं। इनका जहां तक सवाल है, इनके ऊपर केसेस वहां दर्ज हैं। अब जो प्रक्रिया हो चुकी उसमें वहां जाके उनका एस्टेब्लिश होना, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से इनकी वहां से निष्कासन हुआ है और वहां पे जिस तरह जनता ने इनका विरोध किया है, अब एकदम से इमीडिएटली तो हालात नहीं अच्छे होने वाले, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक सवाल आपने कहा कनाडा का, तो कनाडा के लिए तो बात यह है कि हमारे देश ने अपने संबंध बहुत सेकंड ग्रेड के कर दिए, यानी अपने एम्बेसडर्स को बुला लिया, उनके एम्बेसडर को हटा दिया और ये पूरी तौर से दर्शाया कि भारत एक प्रभु संबंध देश है और इंडिपेंडेंट कंट्री है और जो चाहता है वो करेगा, उसकी अपनी पॉलिसी है। अगर हमारे ऊपर बिला वजह के इल्जाम थोपे जाएंगे तो हम आपसे अपने डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लेंगे। यही उसका नतीजा हुआ जब उन्होंने इस तरह की चतुराई दिखाई। आपको पता होना चाहिए कि कनाडा जो है एक मिनी पंजाब है। जो भी हमारे देश से जाते रहे आतंकवादी
यहाँ से या सेपरेटिस्ट जिन्होंने देश को बांटने की बात की, वो वहां जाके उनको शरण दी गई। ये जस्टिस ट्रूडो की बात नहीं, इनके फादर की बात है। उस टाइम याद होगा आपको, कनिष्का विमान दुर्घटना जो हुआ था, उनके आतंकवादियों ने किया था, उनको भी पूरी तरीके से ना तो दंड दिया गया, ना उनको हमको दिया गया। और यही वजह रही कि इन लोगों ने खालिस्तानियों को इसलिए दिया कि वो उनका अभी इलेक्शन है कनाडा में और उनकी हालत बहुत पतली है, इसलिए वो उन लोगों का सपोर्ट चाहते हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। लेकिन अभी जो हुआ है वहां पर, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बस उन्होंने इसको कंडेम किया है वर्बली, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बड़े सख्त शब्दों में उनसे बात कहा और साथ साथ हमारे विदेश मंत्री ने भी बहुत तगड़ी टिप्पणियां की हैं उनके ऊपर। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे जो हिंदू भाई बहन वहां रह रहे हैं वो भी कनाडाई नागरिक हैं इस वक्त, ऐसा नहीं है देश से गए हुए। जहां तक सवाल है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में भी जो हुआ, अब ये चूंकि मैं पहले ही कह रहा था कि ये फेल्योर सरकार थी बाइडेन की। बाइडेन का जो रिजीम है कोई अच्छा रिजीम नहीं था। उन्होंने जो जो कर रहा था वो करने दिया, जो नहीं कर रहा था उसको कुछ कहा भी नहीं, और कहीं ना तो स्टॉप करने की कोशिश की, ना इनिशिएटिव लिया, जिसका नतीजा है कि डेड सरकार थी और डेड में चली गई। यानी वो बिल्कुल निष्क्रिय सरकार थी, जिसमें कि उनको इसी का खामियाजा उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस को भुगतना पड़ा। उन्होंने भी झूठे वादे करने शुरू किए। उन्होंने दुनिया भर के एबॉर्शन, ये वो जो हो नहीं सकते मुद्दे, उन मुद्दों को उठाया जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये हमारे ट्रम्प साहब लगे रहे और उन्होंने किया। मैं आई एम श्योर 100% कि अगर ये मुद्दा, चूंकि हर चीज डिपेंड करती है यूएस के ऊपर, यूएस का पड़ोसी मुल्क है कनाडा, तो आप गए होंगे या तो मैं तो गया हूं, आप भी गए होंगे तो देखा होगा, जैसे बीच में नागरा फॉल है, क्रॉस करी तो उधर आ जाता है, बाकी तो बाउंड्री है। ये सवाल इस बात का है कहने का कि अगर अमेरिका चाह लेगा, यानी वहां के प्रेसिडेंट चाह लेंगे ट्रम्प, तो हमारे अमेरिका कनाडा से भी अच्छे संबंध हो सकते हैं और उन पे दबाव डाला जाएगा इस बात का कि देखिए अगर वो टेररिज्म की बात करते हैं और हम भी आतंकवाद की बात करते हैं, तो इस बात पे वो अमेरिका हमारे साथ आएगा। ऐसा नहीं है। और वहां के जो हमारे जो नागरिक हैं अब अपने को सेफ समझ रहे हैं, पहले भी समझ रहे थे, अभी भी समझना चाहिए। अब बांग्लादेश में भी हमारे देश के लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है, हमारे एम्बेसडर ने विरोध दर्ज किया है और देखिए हर चीज नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि बांग्लादेश में क्या होगा, सत्ता वापस आएगी या पाकिस्तान में उनकी सत्ता वापस आएगी। जो होना था हो गया। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मैं समझता हूं, 100% श्योर कि शांति आएगी विश्व में, क्योंकि इन्होंने भी प्रॉमिस ये किया है हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देंगे और हम लड़ाई करेंगे नहीं। शांति अगर उधर से है, अगर यूएस शांति चालेगा तो हमारे वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी हर तरह से हर आदमी शांत रहेगा और यहाँ पे लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे। देखिए अभी देखा होगा आपने, नेपाल भी कुछ अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी है, उसके पीछे चाइना का हाथ है। लेकिन अब ट्रम्प का जो सख्त रवैया है, जो अब उनपे बैन लगाना शुरू करेंगे चाइना के चक्कर में, तो हमें भी थोड़ा उसका लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो चाइना की जो नकेल है वो टाइट होगी और हमारा हिंदुस्तान तो ही है, इस तरीके से वो भी थोड़ा ढीलापन आएगा, तो हमारे पड़ोसी देशों को थोड़ा थोड़ा एक्टिव करता रहता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं इस लिहाज से करता कि मोहम्मद यूनिस साहब जो हैं वो जो बाइडेन सरकार के सपोर्ट से ही वहाँ पहुँचे हैं, तो वो सपोर्ट अब चूँकि उनको नहीं मिलेगा, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनकी सत्ता बांग्लादेश में कमज़ोर होगी और वापसी एक बार फिर जो शेख हसीना के लोग हैं, शेख हसीना जा ना पाए भले, वो जा सकते हैं। खैर चलिए, कारोबार की बात करें संदीप चौधरी साहब, तो भारत जो है ज़्यादा निर्यात करता है, आयात कम करता है। ये बात चुनाव में ट्रम्प साहब भी लगातार जो है बोलते रहे हैं, तो वो चाहता है कि थोड़ा संतुलित हो। हालांकि और क्या जो है भारत जो बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, उसको अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए ट्रम्प साहब की वजह से, या जो रूस की तरफ वो संतुलन बना रखा है वो बरकरार रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, हमें कई चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये देखिए, जैसे अमेरिका और रसिया के बीच में एक वॉर रहती है, साइलेंट वॉर कह सकते हैं, या चाइना के साथ में जो अमेरिका की साइलेंट वॉर रहती है, इन चीजों को हमें, इनका कहीं बॉर्डर टच नहीं हो रही है, कुछ इनका बंटवारा नहीं हो रहा।
हकीकत ये है, ये लोग इनकी अपनी एक मार्केट है बहुत बड़ी, और हथियारों की बहुत बड़ी मार्केट है। ये चीजें कहना बहुत अच्छा लगता है कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे या हम दुनिया से ये लड़ाई खत्म कर देंगे। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो मुझे लगता है इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो धराशायी हो जाएगी। तो आप ये देखिए, जब भी कई आतंकवादी से हथियार पकड़े जाते हैं या दो देशों के बीच होते हैं, वो या तो अमेरिकन हथियार यूज कर रहे होते हैं, या रशियन हथियार यूज कर रहे होते हैं, या वो चाइनीज हथियार यूज कर रहे होते हैं। और यही तीनों देश ये कहते हैं कि भाई आतंकवाद भी खत्म करना है, लड़ाई भी खत्म करनी है। इसका मतलब जैसा अमीन साहब ने कहा था, जुमला राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज है, चाहे हिंदुस्तान की राजनीति हो चाहे इंटरनेशनल राजनीति हो। तो और ये तो पूरे बिजनेसमैन है, ट्रंप साहब पूरे तरीके से बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस करना है। उन्होंने ये चीजें साफ कर दी है। वो टैक्स को किस तरीके से मैनेज करेंगे, अपने यहाँ के लोगों पर वो बोझ कम जरूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता दुनिया के साथ वो इन चीजों को कम करने वाले हैं। और अभी ये देखिए आप, जैसे हिंदुस्तान की स्थिति है, हिंदुस्तान में बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, नेपाल के साथ अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के साथ अच्छी नहीं है। और ट्रंप साहब हिंदुस्तान को गले लगाएंगे, मोदी साहब को गले लगाएंगे, लेकिन जब F-16 देने का नंबर आएगा तो वो पाकिस्तान को पकड़ा देंगे। पाकिस्तान को इसलिए पकड़ा देंगे कि हिंदुस्तान को राफेल कहीं से खरीदना पड़ेगा, कुछ रशिया से खरीदना पड़ेगा, कुछ अमेरिका के जो चीनूक हेलीकॉप्टर वगैरह है वो लेकर के आने पड़ेंगे। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो हंसकर हमारे साथ चाय पी रहा है या गले लगा रहा है वो हमारा दोस्त ही हो सकता है, वो अच्छा खासा दुश्मन भी हो सकता है। बिल्कुल। अश्विनी साहे जी, बीजेपी के लिहाज से बात करें, जो शुरुआत में डॉक्टर करोड़ी सिंह जी भी ने कही थी, राष्ट्रवाद फैला हुआ पूरे दुनिया में, और बीजेपी राष्ट्रवाद को बहुत आगे ले जा रही है भारत में भी, और इसको लेकर पूरी दुनिया में दो विचारधाराएं हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की विचारधारा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। इस लिहाज से जो है मोदी साहब और ट्रंप की पिछली बार जमती भी रही है, क्योंकि दोनों के सेंटिमेंट्स करीब करीब मेल खाते थे, और उसका फायदा भी उनको चुनाव मिला है। माना जाता है कि 40% वोट जो है अमेरिका में ट्रंप का बना हुआ था, उनके हारने के बावजूद भी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करके वो जीत गए। मोदी साहब भी उसी रास्ते पर हैं, तो क्या लगता है आपको, मोदी साहब भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे? नवीन जी, देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो आपने किरोड़ी साहब ने जो कहा और आप जो बात सवाल कर रहे हैं, इस सवाल को परिप्रेक्ष्य मैंने पहले भी दिया था कि हिंदुस्तान का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम हिला हुआ है, और ये कब से एक भारत के खिलाफ अस्थिरता की बात की जा रही थी। क्योंकि राष्ट्र प्रेमी दोनों लोग बात करते हैं, ये भारत के खिलाफ एक तरीके से पहले से सोरोस चचा का पैसा चलता था हिंदुस्तान की राजनीति को अस्थिर करने के लिए, और उनके जो एजेंट हिंदुस्तान में बने हुए हैं, ये कमला हैरिस जी एक मोहरा थी। अगर कमला हैरिस जी चुनाव जीत जाती तो ये जो है बराक ओबामा साहब का एक पूरा प्रश्रय होता, सुरेश चचा का पैसा होता, हिंदुस्तान को फंडिंग की जाती, और फंडिंग की करके हिंदुस्तान की सरकार को अस्थिर करने का काम किया जाता। ये इतना बढ़िया काम हुआ है कि आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लोग हिल चुके हैं कि अब जो है मोदी सरकार को हम अस्थिर नहीं करेंगे। पहले 2024 के चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने एक राष्ट्र प्रेमी को वहां बैठाकर इसका जवाब दिया, और आज यहाँ पर जो है ट्रंप साहब जीतकर जो है आज उनके राष्ट्र ने एक वो दिया कि राष्ट्र हमारा प्रथम होना चाहिए। ये जो देश को खंडित और विखंडित करने वाले लोग हैं, इनके मंसूबों को हम जो काम नहीं करने देंगे, इनके नापाक मंसूबे जो हैं उनको कभी पल्लवित और पुष्पित नहीं होने देंगे। आज वही दिख रहा है, और दोनों लोगों ने अपने राष्ट्र की बात की, अपने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने युद्ध वाली बात मैंने पहले भी कही, इन्होंने बुद्ध का देश कहा कि भाई हमारा बुद्ध का देश है, हम शांति चाहते हैं, वही ये कह रहे हैं हम युद्ध बंद करेंगे। पूरे राष्ट्र की बात दोनों लोगों ने हर चुनाव में किया है, और इसी का विरोध हुआ है। वहां पर भी इसका विरोध हुआ है, यहां पर भी विरोध हुआ है। आज जो हिंदुस्तान में दिख रहा है, कई ऐसे राजनीतिक अजात शत्रु जो बने हुए हैं, जो उन लोगों को आज इतनी बेचैनी हो गई है कि एक राष्ट्र प्रेमी चुनाव जीत गया और दूसरा राष्ट्र प्रेमी उनका मित्र है, इसलिए अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। दोनों देशों में खुशहाली लाएगा, और हिंदुस्तान के लिए ये बहुत शानदार, एक तरह से कहा जाता है कि किसी अनाज में जब खाद डाल दिया जाता है तो और तेजी से पनपता है, तो वही आज खाद पड़ा है जो कि विषैले तत्वों को नष्ट करेगा और उर्वरता को बढ़ाएगा और पौधों को सही करेगा। हिंदुस्तान के लिए आज माननीय मोदी जी जितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं अपने राष्ट्र के लिए, और आयात निर्यात की जहां तक आपने बात किया, देखिए हिंदुस्तान
पहले बहुत कुछ काम करता था, लेकिन आयात और निर्यात में पहले बहुत पीछे था। आयात होता था, निर्यात अब हमारा कितना बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया हिंदुस्तान में, आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज देखिए हमारे जो है रुपए के बदले में कितने देश हमसे व्यापार करने के लिए तैयार हैं। आज हिंदुस्तान अपनी चीजों को अपने उत्पादकता से आगे बढ़ रहा है, अपनी मजबूती हम स्वयं बढ़ा रहे हैं, और यहाँ की 150 करोड़ की जो जनता है ये हमारी मजबूत कड़ी है, जिसी में यही जो बांटो और राज करो की बात करते हैं ये लोग, हम लोग मिलने और जुलने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में इस तरीके से मोदी साहब के साथ लोग चले गए, एक तबका था उनको हराने की कोशिश की गई, बांटो, जातियों में बांटो, लेकिन एक देशवासी के होने के नाते, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते आज भी हिंदुस्तान में हम जब बालाकोट होता है तो जश्न मनाते हैं। तो जब राष्ट्र प्रेमी हम लोग हैं, कुछ लोग हर जगह होते हैं भाई, ये मीर जाफरों का देश रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज एक मजबूती मिली है भारत को ट्रंप के जीतने से, और हिंदुस्तान आने वाले दिनों में बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, संक्षिप्त बिल्कुल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, उम्मीद करें हम लोग? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने जो नीति अपना रखी है, जहां जहां अमेरिका ने युद्ध लड़ा, इवन अफगानिस्तान जैसे छोटे देश में भी युद्ध लड़ा तो अमेरिका को असफलता मिली। तो अमेरिका आज की स्थिति में लड़ता नहीं है, लड़वाता है। और कमला हैरिस ने अपने भाषण में भी स्पष्ट रूप से कहा कि दुनिया में कहीं, चाहे इजराइल हो, यूक्रेन हो, कहीं भी अमेरिकन सोल्जर कहीं भी नहीं है कॉम्बैट में। आज एक भी सोल्जर अमेरिका का नहीं है युद्ध में, फिर भी अमेरिका, हम कहते हैं कि इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन का कर रहा है, तो अमेरिका लड़वाता है। और वो लड़वाने की नीति है अमेरिका, वो अमेरिका के वर्चस्व से जुड़ी हुई है। जिस दिन अमेरिका लड़वाना बंद कर देगा, अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, आप ये मानते हैं कि समय लगेगा उसमें? की बात करते हैं जी। तो डॉक्टर अमीन, यही सवाल आपसे है साथ साथ, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा युद्ध को समाप्त करना, क्योंकि जो यूक्रेन के पार्ट पे, ठीक है डॉक्टर, समय कम बचा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में। रसिया छोड़ेगा नहीं, रसिया ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा रेफरेंडम करवा लो। ठीक है, अगर रेफरेंडम होता है तो वो रसिया के पक्ष में जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई नेगोशिएशन होगा आज की स्थिति में। अगर सबसे पहले हो तो सीज फायर हो, तो अगली जो पीस समिट होती है, अगर भारत उसका इनिशिएटिव लेता है और भारत उसके लिए पर्याप्त होमवर्क करके पीस समिट करता है, तो सबसे पहला प्रयास होगा कि युद्ध सीज फायर करवाया जाए। ठीक करोड़ी साहब, ठीक है, इसको लेंथ बाद समझेंगे। संक्षिप्त जवाब जो है डॉक्टर अमीन, संक्षिप्त खत्म हो पाएगा जल्दी? समझ है तो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर अमीन, जी जल्दी खत्म हो पाएगा क्या समय लगेगा? रूस, देखिए युद्ध जो हो रहा था उसमें वहां पर अमेरिका का पैसा लग रहा था, और अमेरिका उस पर टैक्स लगा रहा था वहां के लोगों पे, जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। आप ही समझ लीजिए कि जो भी टेस्ट करने थे अमेरिका को, अमेरिका की डिफेंस को, उन्होंने अपने टेस्ट कर लिए, चाहे मिसाइल हो या हथियार हो, पायलट हो, सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। सारा इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है। अब रह गया ट्रम्प का डिक्टेटरशिप। वो आएंगे और ये कहेंगे इस काम को कि अभी बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिजूल खर्ची है ये, अब बिल्कुल फिजूल खर्ची है, अब ये बंद होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र का डेवलपमेंट हो। अब मैं आई एम श्योर कि लगेगा कुछ समय, लेकिन हाँ, जब उन्होंने 24 आवर की बात की है, तो मैं कहता हूँ 24 दिन में आप देखिएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में चलिए, बहुत अच्छी और ये बंद हो जाएगा। अच्छी उम्मीद दुनिया भर के लिए, बहुत अच्छी उम्मीदें लेके आएगा ट्रम्प सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।